we will start the new chapter of chemistry, that is surface chemistry. What is surface chemistry? Surface chemistry means in this chapter we will deal with the phenomena which occur at the surface of the substances, or we can say it deals with the phenomena which occur at the surfaces or interface. That is known as surface chemistry. To the next, we will discuss how to differentiate, how to represent the surface interfaces. The surface interface can be represented by a hyphen. If two things are there and they have complete miscibility, then there will not be interface in between them. In order to discuss the surface chemistry, we have an ultra pure surfaces. Ultra pure surfaces because if we have a metal and when it is clean, though after it has already absorbed certain gases. So for that, we should have kept that metals under a reduced pressure of 10 to the power minus 8 to 10 to the power 5 Pascal. In this chapter, we will discuss absorption, adsorption, adsorbate, adsorbent, physioabsorption, chemioabsorption, differences, Langmuir adsorption isotherm, together with various phenomena which occurs, which can relate it with our daily life, through which we can know the importance of adsorption. Let us discuss what is surface chemistry. Surface chemistry. Surface chemistry deals with the phenomena at interface or at surface. The interface can be represented by hyphen. For example, a solid liquid interface can be represented as solid hyphen liquid. तो हमने क्या पढ़ा? सरफेस केमिस्ट्री में हम केवल उन फिनोमेना के बारे में बात करते हैं जो सरफेस पे होते हैं या इंटरफेसेस पे होते हैं। इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं और हमने एक एग्जांपल से सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के बारे में हमने बात किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ अगर हमारे पास दो चीजें हैं और उन दो चीजों की कंप्लीट मिक्सिबिलिटी होगी तो फिर इंटरफेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्कोहल वाटर है तो हम जानते हैं अल्कोहल और वाटर की कंप्लीट मिक्सिबिलिटी होती है एंड ड्यू टू हैविंग कंप्लीट मिक्सिबिलिटी देयर विल नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसेस। तो इंटरफेस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? मिक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो हमको इंटरफेस मिलेगा। The third point we have, there will not be interface due to miscibility of
one substance in another. So for the next we have discussed to study the surface chemistry, we have ultra clean surfaces. So the next, in order to study surface chemistry, we have ultra clean surfaces in which the substance should be placed in high vacuum of the order of 10 to the power 8 to 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 9 पास्कल. Why it is so? ऐसा क्यों है भाई? क्यों हम इसको हाई वैक्यूम में रखेंगे? Because if we have a substance and when we have a clean surface of that substance and when it is kept in open atmosphere, then it will automatically absorb nitrogen and oxygen over its surfaces. And if it has already absorbed certain substances, then on that substances we will not study the surface chemistry. This is so because when a substance having clean surfaces is placed, then it will absorb nitrogen and oxygen over its surfaces, and hence quite difficult to study surface phenomena. तो क्या हमने पढ़ा कि जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके लिए हमें अल्ट्रा क्लीन सरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि और उसमें उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसको रखेंगे हम हाई वैक्यूम में टू द प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 टू 10 टू द पावर माइनस 9 पास्कल. क्योंकि इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ओपन एटमॉस्फेयर, सब्सटेंस को अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, देन दो इट हैज क्लीन सर्फेसेस होते हुए भी वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा. और जब उसकी सरफेस पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हैं, तो फिर वी विल नॉट स्टडी द सरफेस फिनोमेना और द सरफेस केमिस्ट्री रिलेटेड टू इट. इसीलिए हमें क्या चाहिए? सब्सटेंस को हाई वैक्यूम में रखना है जिसपे हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है. नाउ we will discuss what is adsorption, what is absorption, what is adsorbent, what is adsorbent, and we will discuss various phenomena related with adsorption from our day-to-day life. Let us start the studying of adsorption and absorption by doing one activity. Suppose if we have a container
and that container contain what? Ink. It contain ink. When a chalk is placed into it, then after certain time, when we remove the chalk, then what we see? We see that the surface of the chalk, it gets blue in color. This is blue, whereas this portion remains white. But this white portion contains water. क्या होगा? हम एक एक्टिविटी करेंगे, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहीं पे और जान भी लेंगे। हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें इंक लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इंक का। जब हम उसमें चॉक को प्लेस करेंगे, डालेंगे, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन वी गेट इट आउट, जब उसको हम निकालेंगे तो देखेंगे कि जो इंक है वो केवल और केवल कहाँ है? सरफेस पे है, अंदर नहीं है। अंदर पोर्शन व्हाइट है, लेकिन जो व्हाइट पोर्शन है वो वाटर को, वहां वाटर की प्रेजेंस हर जगह है। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि जो इंक है वो केवल सरफेस पे रह गई और जो वाटर है वो कहां चला गया? बल्क में भी चला गया। यानी कि इट मीन्स वाटर जो है वो क्या हुआ है? एब्जॉर्ब हुआ है, और जो इंक है वो क्या हुई है? क्या हुई है? इंक एब्जॉर्ब हुई है। अब ये जो चॉक है, इसको बोलेंगे हम एडजॉर्बेंट। वह सॉलिड या लिक्विड जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। और जिस मॉलिक्यूलर, यहां इंक है ना, जिस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ रही है, यहां इंक है, तो इसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो हमने क्या डिस्कस किया? एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मीन्स, एब्जॉर्प्शन यहां क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना मतलब जिस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा वो किसी दूसरे सब्सटेंस में होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि हर जगह होगा और उसकी कंसंट्रेशन हर जगह इक्वल होगी। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज की कंसंट्रेशन केवल और केवल सरफेस पे रहे, बल्क में ना रहे, तो ऐसे फिनोमेनास को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस, लेट अस डिफाइन इट। व्हाट वी विल डिफाइन? एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन। Absorption means the process of homogeneous distribution of a substance throughout the bulk of solid। अगर कोई सब्सटेंस का होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसे चॉक में वाटर का जो है वो क्या है? होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन मीन्स किसी एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज की कंसंट्रेशन केवल सरफेस पे इंक्रीज करे रेदर देन बल्क। इट मीन्स it is the process of accumulation
accumulation of molecular species at the surface rather at the surface of solid or liquid rather than bulk is known as adsorption. What we are seeing, what we observe, हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंसंट्रेशन केवल सरफेस पे बढ़ रहा है, और जब केवल सरफेस पे बढ़ रहा है, बल्क में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पूरे मिक्सचर्स में चला, पूरे सब्सटेंस के अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो विल राइट इट इज अ सरफेस फिनोमिना। And this one, it is a bulk phenomena. तो ये बल्क फिनोमिना है और ये सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि ये सरफेस पे केवल होता है। द नेक्स्ट, वी नो व्हाट इज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? वी नो when we will write adsorption, ADSORPTION and ABSORPTION. This is adsorption, this is absorption, this is surface phenomena, this is bulk phenomena. When these two processes occur together, अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो हम देखो क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है दोनों में synonymous है। If these two processes occur simultaneously, then this process is termed as sorption. It means if adsorption, what we have discussed, absorption means the process of homogeneous distribution or uniform distribution of a substance throughout the bulk of solid. किसी solid में जैसे water का distribution, चौक में water का homogeneous distribution हुआ, हर जगह है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? absorption बोलेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या हो जाए, कंसंट्रेशन केवल सरफेस पे इंक्रीज हो, बल्क में ना हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। इसीलिए सरफेस पे बढ़ रहा है तो दैट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना, हमने लिखा भी है। इसमें बल्क में भी होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इसको बल्क फिनोमिना बोलेंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सॉर्प्शन क्या होता है। हम जानते हैं कि एडसॉर्प्शन में देखिए, दे हैव अ सिनोनिमस वर्ड सॉर्प्शन in case of adsorption together with absorption. It means if adsorption together with absorption takes place, अगर absorption भी हो रहा है और adsorption भी हो रहा है तो that phenomena is termed as sorption. If adsorption together with absorption, ABSORPTION, absorption takes place, then it is known as sorption. Now we will discuss adsorbent. जिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंसंट्रेशन सरफेस पे इंक्रीज कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? एडसॉर्बेंट। और जिसके ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है दैट इज नोन एज एडसॉर्बेंट। इट मींस एडसॉर्बेंट क्या है? द मॉलिक्यूलर स्पीसीज whose concentration increases
at the surface, in case of adsorption is known as adsorbent. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या है? वह सब्सटेंस, वह सॉलिड या लिक्विड जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है, दैट इज नोन एज एडसॉर्बेंट। द सब्सटेंस over which the phenomena of adsorption is taking place is known as adsorbent। तो हमने क्या लिखा? एडसॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन, अगर हम चॉक का एग्जांपल लें, इंक में डालें, तो इंक क्या होती है? चॉक के सरफेस पे बढ़ती है, बल्क में नहीं जाती, अंदर नहीं जाती। तो इंक का क्या हुआ है? एडसॉर्प्शन हुआ है। वाटर बल्क में भी जाता है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है चॉक में, तो उसको बोलेंगे हम क्या? एब्जॉर्प्शन। अब चॉक के ऊपर इंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो चॉक जो होगा वो हमारा क्या होगा? एडसॉर्बेंट। और जो इंक होगी जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट। हम देख रहे हैं कि जब हमने चॉक को इंक में डाला तो वाटर बल्क में भी गया लेकिन इंक सरफेस पे रही, यानी कि एडसॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ, दोनों हुआ, तो कहेंगे क्या हुआ? सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। If adsorption together with adsorption taking place, it is termed as sorption. So this is certain terminology which we have to study in case of surface chemistry. To the next, we will discuss the certain phenomena which are related to adsorption from our day-to-day life.